आज आसनसोल नगर निगम के आलोचना भवन में आसनसोल के विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधि और आसनसोल के विशिष्ट नागरिकों को लेकर एक बैठक की गई। यहां मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक, पार्षद डॉक्टर अमिताभ बसु आदि उपस्थित थे। यहां आने वाले 9 और 10 मई को रविंद्र भवन में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती को मनाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक के दौरान कवि गुरु की जन्मदिन पालन की रूपरेखा तैयार की गई। इस संदर्भ में आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि आज की बैठक में 9 और 10 मई को रविंद्र भवन में रविंद्र जयंती का जो कार्यक्रम होगा उस पर चर्चा की गई है और एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में मेयर विधान उपाध्याय चेयरमैन होंगे, जबकि वे यानी अमरनाथ चटर्जी वाइस चेयरमैन बनेंगे। इसके अलावा और भी कई गणमान्य लोग इस कमेटी का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि ईद के बाद 4 मई को इस कमेटी की एक बार फिर से बैठक होगी, जहां इस कार्यक्रम के बारे में और भी विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम चाहता है कि क्षेत्र के लोग एक सुखी और समृद्ध जीवन जी सके और इसके साथ ही उनका सांस्कृतिक विकास भी हो। आज के रवींद्र जयंती उपलक्षे कॉर्पोरेशन प्रत्येक बछरই 3 दिन ব্যাপী অনুষ্ঠান করে থাকে। নানান রবীন্দ্র চর্চা এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত, রবীন্দ্র নৃত্য এইসবের মাধ্যমে আমরা এই রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করে থাকি। বিগত 2 বছর ধরে করোনার কারণে আমরা সেভাবে করতে পারিনি, কিন্তু এবছর আবার আমরা রবীন্দ্র জয়ন্তী আমরা পালন করছি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে। তো আমাদের প্রভাত ফেরি থেকে এই অনুষ্ঠান শুরু হবে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্র ভবনে সকালে এবং সন্ধ্যায় নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবো। এর সাথে সাথে তার পরের দিন মানে 26 তারিখে আমাদের কলকাতা থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের যিনি শিল্পী তিনি আসবেন এবং আমাদের এখানে আসানসোলের মানুষকে আমরা রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভালো গান শোনার সুযোগ পাবো। তাই এইভাবেই আমরা রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী আমরা পালন করব এবং 25শে বৈশাখ আমরা জানি প্রত্যেকটা বাঙালি এবং বাংলার প্রত্যেকটি যারা বাস করেন তাদের সকলেরই একটা আবেগের দিন। তাই এই দিনে আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানাতে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন তাকে শ্রদ্ধা জানাবে। আমরা আশা করব যে আসানসোলের মানুষ, রবীন্দ্রপ্রেমী মানুষ এই 2 দিন রবীন্দ্র ভবনে উপস্থিত থাকবেন এবং প্রভাত ফেরিতে উপস্থিত থাকবেন এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করবেন। রবীন্দ্রনাথের জন্ম উৎসব উপলক্ষে একটা মিটিং করলাম। তো সবাই এসছেন, বিভিন্ন স্কুল থেকে এসছেন, বিভিন্ন সংস্থা থেকে এসছেন এবং এখানে আমাদের একটা কমিটি তৈরি হলো। আমাদের মেয়র আমাদের চেয়ারম্যান হলেন এই কমিটির, আমি ভাইস চেয়ারম্যান হলাম এবং অভিজিৎ ঘটক আমাদের এই কমিটির প্রেসিডেন্ট হলেন এবং ওয়াসিমুল হক আমাদের প্রফেসর আমাদের রয়েছেন, শ্রাবণীদি রয়েছেন, এনারা সব মেম্বার হলেন এবং আরও বেশ কয়েকজনকে মেম্বারকে নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানটাকে একটা বর্ণময় অনুষ্ঠানে রূপ দিতে চাই। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতেই সকলে সমবেত হয়েছে। আগামী 4 মে আমরা আবার এটা নিয়ে বসবো ঈদের পরে, যাতে আসানসোলের মানুষ সুন্দর একটা সংস্কৃতির মধ্যেখানে আগামী দিনগুলো অতিবাহিত করতে পারে, তার ব্যবস্থা করার জন্য আমাদের এই সিদ্ধান্ত। রবীন্দ্রনাথ মানে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন আবৃত্তি, বিভিন্ন রকমভাবে যে একত্রিতভাবে গান করা এবং রবীন্দ্রনাথের যে গীতিনাট্যগুলো ছিল সেই সমস্তগুলোর মধ্যেখানে একত্রিতভাবে কণ্ঠে সেই গানগুলো আমরা দেখতে পাই
এবং আমরা ছবি আকারে আগামী দিনে দেখতে যাতে আসানসোলের লোক পায় তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। তো সেটা যদি উপভোগ করতে পারে আসানসোলের মানুষ, তাহলে আমরাও সবাইকে 9 তারিখে আহ্বান করছি যে আমাদের যে বাইরে যে অনুষ্ঠানটা রয়েছে সেখানে আসুন। पूर्व रेलवे के आसनसोल रेल मंडल के रानीगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गुरुवार सुबह करीब 5:40 पर आसनसोल की ओर जा रही एक लोकल ट्रेन के नीचे फिसल कर चले जाने से और ट्रेन के नीचे गिरने के बाद दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत हो गई। मृत व्यक्ति का नाम मुख्तार है, जिसकी उम्र 72 साल बताई जा रही है। ये बुजुर्ग गांजरदीही गांव मंगर क्षेत्र नावड़ी छात्रा क्षेत्र बोकारो जिला झारखंड के रहने वाले हैं। पता चला है कि वे रानीगंज के वार्ड नंबर 89 के नबीनगर इलाके में अपनी बेटी दामाद के घर से घर लौट रहे थे, तभी ये व्यक्ति फिसलकर ट्रेन के नीचे गिर गया। अधिकारी व अन्य रेलकर्मी मौके पर पहुंचे और काफी मुशक्कत के बाद वृद्ध को बचाया और रानीगंज के अलूगोरिया स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद रानीगंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। इस बीच इलाके में मातम छा गया है। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। রেখেছিল ঘর থেকে বেরাইছে সেরি করে বলছে আমি নিজের বাড়ি যাচ্ছি, পরব আছে। কোথায় বাড়ি ছিল ওনার? হ্যাঁ, কোথায় বাড়ি ওনার? বাড়ি ওখানে আছে চন্দরপুরা স্টেশন, আর বাড়ি হচ্ছে মঙ্গো গুঞ্জারি, মানে অ্যাড্রেস আছে। থানা হচ্ছে নাওয়াডি। কি হয়েছিল আজকে, কখন বেরিয়েছে? মানে সকালবেলা 5টা সবা 5টা বেরাইছে, তারপর কি হয়েছে? আর তারপরে ট্রেন ধরতে গিয়েছে, স্লিপ করেছে। কিছু অসুবিধা হয়েছিল? অসুবিধা কিছু না, মানে একদম আসা যাওয়া পুরো করছিল। কি করে মারা গেছে? পুলিশ অফিসার বলছে আমরা কথাবার্তা সব কিছু করেছি, যখন বাজ করেছিল তখন আবার হসপিটাল সরকারি হসপিটাল আনতে আনতে ডেট করে গেছে। কত বয়স হয়েছিল না? বয়স ওই 60-এর উপর আছে, 60-এর উপর রিটায়ার করেছি, 72। কিছু কাজ করতেন উনি? কাজ করছিল, রিটায়ার হয়ে গেছে। কিসে কাজ করতেন? হ্যাঁ, কিসে কাজ করতেন? বিসিসিএল এ কাজ করছিল। এইখানে কি এটা আপনার জিআরপি তুলেছেন না আপনার রানিগঞ্জ থানা? রানীগঞ্জ জিআরপি থানা, জিআরপি থানা, তারপরে তো এখান থেকে সরকারি থেকে রানীগঞ্জ থানা দিয়েছে। কি নাম আপনার? আমার নাম এমডি সালাউদ্দিন। আপনি কে হন ওনার? আমি ওর জামাই। गुरुवार को बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। उन्होंने 30 अप्रैल को गुरुद्वारा में होने वाले एक धार्मिक अनुष्ठान में आमंत्रित करने के लिए मेयर को निमंत्रण पत्र दिया। उन्होंने उनका निमंत्रण पत्र हर्ष स्वीकार किया और कहा कि वे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने जरूर आएंगे, ताकि इस धार्मिक अनुष्ठान में वे सम्मिलित हो सके और सिख समाज के सभी लोगों से उनका परिचय हो सके। आज हम लोग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और हमारे बनपुर की सिख समाज की तरफ से अपने नए मेयर साहब ने जो कार्यभार संभाला था, उसमें हम लोग को भी बड़ी प्रशंसा हुई, श्री विधान उपाध्याय जी। तो हमने आज अपने सिख समाज की तरफ से उनको जो सम्मानित भी किया गया और एक निमंत्रण लेटर भी दिए। हमने शनिवार 30 तारीख को गुरुद्वारा बनपुर में हमारे सेकंड गुरु अंगद देव जी महाराज का जन्म प्रकाश उत्सव है, तो शाम का हमारा प्रोग्राम है, उसमें हमने निमंत्रण किया कि आप आएँ और कम से कम सिख समाज के साथ भी अपना जो एक परिचय करें। तो उन्होंने हमें आश्वासन के श्योर किया कि हम जरूर अपना समय निकाल के आएंगे गुरुद्वारा बनपुर में अपना माथा टेकने के लिए भी और सिख समाज के साथ में परिचय करने के लिए। आपका नाम क्या है? मैं सुरेंद्र सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का महासचिव। इन दिनों पूरे बंगाल के साथ साथ शिल्पांचल में भी गर्मी का कहर देखा जा रहा है। गर्मी के इस प्रचंड रूप के चलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्कूलों में समर वेकेशन की घोषणा भी कर दी है। 2 मई से सभी स्कूल बंद हो जाएंगे, लेकिन जिनको रोजमर्रा की जरूरत के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ रहा है, उनका क्या ये लोग खुद को कैसे स्वस्थ रखें? इसके लिए प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कौशिक सुर ने कुछ जरूरी सुझाव दिए। इनका कहना है कि लोग आजकल नमक को लेकर काफी जागरूक हो चुके हैं।
उनको पता है कि नमक के अधिक सेवन से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होती हैं। ऐसे में नमक का सेवन काफी कम कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे जैसे देश में जहां ग्रीष्म ऋतु काफी दिनों तक रहती है और लोगों को काफी पसीने निकलते हैं, ऐसे में शरीर से नमक काफी मात्रा में निकल जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। नमक के शरीर से निकल जाने से तरह तरह की बीमारियां हो सकती है, यहाँ तक कि इंसान की मौत भी हो सकती है। इसे लेकर डॉक्टर कौशिक सूर ने लोगों को कहा कि शरीर में नमक की मात्रा का संतुलन बनाए रखने के लिए, खास करके इस प्रचंड गर्मी में जहां बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है, लोगों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में अतिरिक्त नमक का सेवन करते रहना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि समय समय पर वे अपनी जांच भी करवाते रहें। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में वैसे भी ब्लड प्रेशर थोड़ा कम रहता है। ऐसे में अगर थोड़ी मात्रा में अतिरिक्त नमक का सेवन किया जाए और नियमित रूप से चिकित्सक के पर्यवेक्षण में रहा जाए तो उससे हानि नहीं परंतु लाभ ही होगा। डॉक्टर कौशिक सूर ने आगे कहा कि शरीर से नमक के निकल जाने से पोटेशियम और सोडियम की कमी हो जाती है। अगर कोई नियमित रूप से किसी दवा का सेवन कर रहा है तो उसे चिकित्सक से ये पता कर लेना चाहिए कि क्या इस दवा के सेवन से शरीर से नमक की मात्रा कम हो जाएगी। अगर ऐसा है तो इस गर्मी के मौसम में शरीर में नमक की मात्रा का संतुलन बनाए रखने के लिए उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में अतिरिक्त नमक का सेवन करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ज्यादा नमक का सेवन भी हानिकारक हो सकता है, लेकिन चिकित्सक के तत्वाधान में रहकर नियमित जांच करवाकर गर्मी के इस मौसम में अगर थोड़ा बहुत अतिरिक्त नमक का सेवन किया जाए तो वह हानिकारक नहीं होगा। गर्मी के चलते मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूँ, वो है नमक को लेके। आज की डेट में इस एरिया में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट के पेशेंट बहुत हैं। सभी लोग जिनको एक बार प्रेशर हो जाता है, जिनको एक बार हार्ट का बीमारी हो जाता है, सब लोग आज के डेट में जानते हैं कि नमक कम खाना है, एक्स्ट्रा नमक नहीं खाना है। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज़ है, पर साथ में एक दूसरा बात भी हम लोगों को ध्यान में रखना है कि इतना गर्मी में बॉडी से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और कुछ मेडिसिन्स भी एज एंटी हाइपरटेंसिव या कार्डियक मेडिसिन्स ऐसा चलता है जो बॉडी से नमक को निकालता है। अब जो आदमी ठंडा देश में रहता है, जो आदमी ज़्यादा पसीना जिसको नहीं होता है, उसके लिए ये बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। पर जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में है, जैसे कि हम लोग के यहाँ पर है, जिनको पसीना होता है, जो इस तरह का दवा खा रहे हैं जो बॉडी से नमक को गिरा दे, ऊपर से इतना गर्मी में उनको अगर ज़्यादा पसीना हो गया या किसी प्रकार दो एक बार उल्टी या लैट्रिन हो गया, सोडियम और पोटेशियम गिर जाना, जिसको डॉक्टरी परिभाषा में हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया कहते हैं, ये इस देश में बहुत कॉमन है। और मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि लोगों में इस चीज़ को लेके ज़्यादा जागरूकता है ही नहीं। इस तरह के पेशेंट हमको आए दिन अस्पताल में ढेर सारे मिलते रहते हैं, खास करके इस समय पे। तो इस खुशी के अवसर में मैं चाहता हूं कि आप लोग जैसे नमक कम खाना है इस विषय में जागरूक हो, वैसे ये भी आप लोग जानें कि हर वक्त नमक कम खाना ही सॉल्यूशन नहीं है। नमक ज़्यादा कम खाने से, नमक अगर बॉडी में गिर जाए तो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। उससे डायरेक्ट ब्रेन पे असर पड़ता है, उससे डायरेक्ट हार्ट में, किडनी में असर पड़ता है, यहाँ तक कि इंसान की जान भी जा सकती है। तो क्या इसका मतलब, पहली बात आपको नमक और सोडियम और पोटेशियम जो है उसका जांच करना है, ध्यान देना है कि वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं। दूसरी बात, आपका जो मेडिसिन चलता है, आपको डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि क्या ऐसा कोई मेडिसिन है जो ब्लड में ये चीज़ को डाउन कर सकता है। अगर है तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। इन जनरल डेफिनेटली नमक बहुत ज़्यादा तो नहीं खाना चाहिए, पर जो लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, जिनको रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन बहुत हाई है, वो अगर हाइपरटेंशन के शिकार है भी तो भी मैं सजेस्ट करूँगा गर्मियों के टाइम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्ट अगर वो लोग खाएंगे तो उनको हाइपोनेट्रीमिया से प्रोटेक्शन मिलेगा। ब्लड प्रेशर नेचुरली गर्मी के टाइम में थोड़ा कम जाता है, ये एक नेचुरल फिनोमेनन है, एनवायरनमेंटल और एटमॉस्फेरिक कारण के चलते ऐसा होता है।
तो अगर ब्लड प्रेशर उतना ज़्यादा समस्या नहीं है तो नमक थोड़ा थोड़ा सप्लीमेंट आप लेते रहिए, अदरवाइज रिस्क ऑफ हाइपोनेट्रीमिया विल बी वेरी हाई। सतर्क रहिए, खुश रहिए, सभी स्वस्थ रहिए। सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज रानीगंज बांग्ला पखों की तरफ से रानीगंज के स्टेशन मास्टर, स्टेशन मैनेजर और डिप्टी स्टेशन मैनेजर को ज्ञापन सौंपा गया। इसके जरिए उन्होंने रानीगंज रेलवे स्टेशन पर बांग्ला में साइन बोर्ड लिखने की मांग की। इसके साथ ही जो घोषणाएं होती हैं उनको भी बांग्ला में करने की मांग की। उनका कहना है कि जो यात्री स्टेशन पर आते हैं जिनको सिर्फ बांग्ला भाषा का ज्ञान है, उनके इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनको हिंदी भाषियों से पूछना पड़ रहा है कि कौन सी ट्रेन कब आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ रेलवे कर्मचारी ऐसे भी हैं जब उनसे बांग्ला में यात्री कुछ पूछते हैं तो वे ऐसा भाव दिखाते हैं कि वो किसी और दूसरे विश्व से आए हैं। बांग्ला प्रखों की तरफ से दिव्यन मुखर्जी ने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में कोई भी आकर नौकरी कर सकता है, लेकिन उसे स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है और उसे स्थानीय भाषा में ही सेवा प्रदान करनी होगी। রানীগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে রানীগঞ্জ বাংলা পক্ষ থেকে আমরা সবাই আসি। এখানে জানতে পারি যে কিছু সাইনবোর্ড আছে যেখানে বাংলার ব্যবহার হচ্ছে না, শুধুমাত্র হিন্দি আর ইংরেজির ব্যবহার হচ্ছে। আমরা এখানে বিভিন্ন যাত্রীর কাছ থেকে জানতে পারি যে তারা ম্যানুয়াল অ্যানাউন্সমেন্ট মানে মুখে যে কোচের অ্যানাউন্সমেন্ট হয় তারা কোনো বাংলায় আপডেট পাচ্ছে না, সেই জন্য তাদেরকে এদিক ওদিক দৌড়াতে হচ্ছে। রীতিমতো অবাঙালি লোকেদের কাছে রিকোয়েস্ট করে বলতে হচ্ছে হাত জোর করে, দাদা বুঝিয়ে দিন আমার ট্রেনটা কোথায়। পশ্চিমবঙ্গের মতো সি ক্যাটাগরি রাজ্যে এটা লজ্জাস্কর। তার সঙ্গে অনুসন্ধান কেন্দ্র, রেলওয়ে বুকিং কাউন্টার, কিছু কিছু কর্মচারী আছে, সব কর্মচারী নয়, কিছু কিছু কর্মচারী আছেন যাদেরকে বাংলায় যখন বলছে দাদা এটা কত, দাদা ওই ট্রেনটা কত, তারা এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন তারা বিশ্বের অন্য জায়গা থেকে এসছে। এটা পশ্চিমবঙ্গে চলবে না এবং চলতে পারে না। আপনি পশ্চিমবঙ্গ ভাষাভিত্তিক রাজ্যে এসছেন, আপনি যে রাজ্য থেকে আসেন না কেন, আপনি কেন্দ্র সরকারের চাকরির অধীনে, কিন্তু এই রাজ্যের প্রত্যেক নাগরিককে, এই ভাষাভিত্তিক নাগরিককে আপনি পরিষেবা দিতে আপনি বাধ্য। আপনাকে এই ভাষায় পরিষেবা দিতে হবে। সেই বিষয়ে আমরা কথা বলতে এলাম। আমরা স্টেশন মাস্টার, স্টেশন ম্যানেজার এবং ডেপুটি স্টেশন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলাম। তারা আশ্বাস দিয়েছেন যে অবশ্যই তারা এই ব্যাপারটা নিয়ে দেখবেন এবং এর আগেও আমাদের ইস্টার্ন রেলওয়ের অভিযানে এডিআরএমকে বলা হয়েছে, তিনিও এটা এগ্রি করেছেন যে অবশ্যই যদি কোনো ধরনের কোনো ত্রুটি হচ্ছে যাত্রীদেরকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলায় তারা দেখবেন। এবং আমরা বলেছি যদি এটা কিছুদিনের মধ্যে ঠিক না হয় আবার বাংলা পক্ষ আরও রানীগঞ্জ বাংলা পক্ষ আরও বড় বৃহত্তর আন্দোলনে অগ্রসর হবে। दीपायन मुखर्जी, रानीगंज बांग्ला पक्ष। जय बांग्ला। आसनसोल के मां घाघरबुरी मंदिर में आज आसनसोल बाबर एसोसिएशन वार्षिक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में न सिर्फ आसनसोल बल्कि सिल्लीगुड़ी, पुरुलिया आदि अन्य जगहों से भी एसोसिएशन के सदस्य आए और किस तरह से इस एसोसिएशन को और उनके समाज को आगे ले जाए उस पर विचार विमर्श किया। इस संदर्भ में एसोसिएशन के पदाधिकारी ने कहा कि कोरोना काल के कारण पिछले 2 सालों से ये बंद था, लेकिन अब इस साल इस सभा का आयोजन किया जा रहा है। আমি এটা আপনাদের কাছ থেকে হাত ধরে প্রণাম সকলকে। আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে আমরা যে সংগঠন করতে এসেছি আমাদেরকে কিন্তু সংগঠন চালাতে গেলে চাঁদা তুলতে হবে। এটা কিন্তু প্রত্যেক সদস্যকে ভাবা উচিত যে সংগঠনটা ওনারা চালাচ্ছেন মানে ওনাদের পকেটের পয়সা দিয়ে সংগঠনটা চলবে না। সংগঠনটা চালাতে গেলে আমরা পয়সা দেবো সবাই মিলে। মিটিং মিছিলে একজন সম্পাদককে অপমান করা বা একজন সভাপতিকে অপমান করা। তাই প্রত্যেকের কাছে আমার হাত জোড়ে নমস্কার করে বলছি যে সংগঠনের চাঁদাটুকু অন্তত দেবেন। সংগঠনের চাঁদায় কেউ খাবে না, আমাদেরই সংগঠনের চাঁদায় আমাদেরই সংগঠন চলবে। সারা বাংলা কমিটি, আগামী দিনে যে সারা বাংলা কমিটি হবে সেই কমিটিতে আমাদের বিধানদা বা দীপকদা বা অনিলদা এনারা যখন করবেন তখন অবশ্যই আসবো। যদি আপনারা আমন্ত্রণ করেন আপনাদেরকে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি ছোট বক্তব্য आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हम लोग आसनसोल बार एसोसिएशन का तरफ से हर साल वात्सरिक सम्मेलन हम लोग करते हैं।
लेकिन हम लोग को जो है कि করোনা আমাদের যে করোনা 2-3 বছর হয়েছিল ওই করোনার জন্যে আমরা করতে পারিনি, তাই আমরা খুবই উৎসাহিত হয়ে এবার আমরা বাৎসরিক সম্মেলনটি মা ঘাগরবুড়ির থানে আমরা শুরু করেছি এবং আমরা দূর দূরান্ত থেকে আমরা পশ্চিম দিনাজপুর, উত্তরবঙ্গ, শিলিগুড়ি, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, আসানসোল, বিহার থেকে প্রত্যেকটি মানুষ আমাদের এখানে সহযোগিতা দিয়েছেন এবং এই সহযোগিতায় আমরা আগামী দিনে আরও খুব উৎসাহ করে আমরা সমিতি করব। আজকের এই যে প্রোগ্রাম, হ্যাঁ, প্রোগ্রামে আজকে কি হলো? আজকের আমাদের বাৎসরিক একটা সম্মেলন হলো, প্রতিটি লোকের সঙ্গে আমাদের মিলন হলো, হ্যাঁ, এবং প্রত্যেকটি আমরা যাতে আরও এই সমিতিকে উন্নতি করতে পারি তার জন্যে, এবং আমাদের এই সমিতির আসানসোল বারবার অ্যাসোসিয়েশন 1988 সাল থেকে আমরা চালিয়ে আসছি, আমাদের একটা বসার জায়গা সেইটা নেই, তার জন্যে আমরা মাননীয় মেয়র সাহেবকে বলেছি আজকে আসার জন্য, উনি এখনও পর্যন্ত উপস্থিত হননি। আমাদের মেন উদ্দেশ্য ওইটাই যে মেয়র সাহেবের কাছে এই প্রস্তাবটা আমরা রাখবো যে আমাদের একটা বসার জায়গা করে দেওয়া হোক, এটাই হচ্ছে আমাদের মেন উদ্দেশ্য। অ্যাসোসিয়েশনে মোটামুটি কত মানে কটা জেলার লোক আছে? আমাদের অ্যাসোসিয়েশনে আমরা আসানসোল, অনলি আসানসোল রেজিস্ট্রেশন, কিন্তু আমাদের এখানে সহযোগিতা করেছেন 35টা ইউনিট, যেমন আসানসোল, অন্ডাল আছে, দুর্গাপুর আছে, রানীগঞ্জ আছে, পাণ্ডবেশ্বর আছে, বরাকর আছে, নামতপুর আছে, চিত্তরঞ্জন আছে এবং শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, প্রতিটি জায়গার থেকে আমাদের এখানে প্রত্যেকে এসেছে এবং আমাদের সহযোগিতা করেছে। আপনার নাম? আমার নাম শ্রী অনিল কুমার পরামানিক, আসানসোল বারবার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট পদে আমি আছি, এটাই হচ্ছে।